कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में जैसे हम लोग पढ़े कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कल किए हैं। इसके बाद आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट। Bailment is the act of transferring goods to a person for a definite purpose without transferring its ownership. Bailment मतलब क्या होता है, मैं अपने सामान तुमको दे रही हूँ, तुम्हारे पास उसको मैं ट्रांसफर कर रही हूँ विदाउट चेंजिंग द ट्रांसफरशिप और मीन्स विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ द गुड। ओनर मैं ही हूँ, सामान का ओनर हम है, लेकिन मैंने उसको तुम्हारे पास भेजा है, मे बी तुमको उसको बेचना है। दैट मीन्स इट्स लाइक एन एजेंसी रिलेशन, एजेंट हो तुम मेरा, ब्रोकर हो, इस टाइप का। On accomplishment of purpose, the goods are required to be returned in the accomplished form to the person from whom the goods are originally received or delivered, the same as directed by him. There are three terms involved in this transaction: bailer, bailee, and contract of bailing. The person delivering the goods is bailer. मैं सामान तुमको दे रही हूँ, so I am the bailer. The person who took the delivery of goods is the bailee. तुम ले रहे हो डिलीवरी, तो you are the bailee. And the contract between the bailee and bailer is called the contract of bailment. Contract of bailment concludes when bailee delivers the accomplished goods either to the bailer or to anyone as directed by him. Chapter 9 of the Indian Contract Act 1872 deals with the contract of bailment. Requisite for a bailment contract. Bailer delivering the goods to the bailee. मैं सामान तुमको डिलीवर कर रहा हूँ. The delivery must be for a definite purpose. कोई पर्पस के लिए तुमको यूज करने दे रही हूँ, और any other कुछ भी कारण से. The delivery done without transferring its ownership. On fulfillment of purpose, bailee needs to deliver the goods to bailer or to any person as directed by him. In the case of Kavita Trehan and others versus Balsara Hygiene Products Limited, the court held that to constitute a bailment, change of possession is essential. Possession change होना जरूरी है. सामान मैं पोजेस कर रही थी, मेरे पास था. पोजेशन मतलब क्या, किसके पास है, मेरे से तुम्हारे पास गया, पोजेशन, बट नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप की जरूरत नहीं, ओनली पोजेशन विल चेंज. ड्यूटीज और लायबिलिटीज ऑफ अ बेलर, राइट्स ऑफ अ बेली. बेली का क्या क्या राइट्स है. इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू डिलीवर द गुड्स टू द बेली इन अ मैनर that gives an impact that the goods are placed in the possession of an intended bailee or any person authorized to hold the same on his behalf. मैंने सामान में भी एक मशीनरी भाड़े पे दिया, जनरेटर भाड़े पे दिया. सोमाले ने बोला मुझे मेरे घर पे पहुंचा दीजिए, या सोमाले ने मुझे बोला सोमनाथ के घर पे पहुंचा दीजिए. Either to bailey or as directed by bailey to the other person. It is the duty of the bailer to disclose any material defects in the goods bailed to the bailey. कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम बता देंगे ना. Such disclosure is important to the extent bailer is aware of such default, interfere while working on such goods, unnecessarily expose the bailey to extraordinary risk. In case of non-disclosure, bailer is held responsible for any loss incurred by bailey owing directly to such non-disclosure. बेली मतलब जिसको मैंने भेज दिया, जिसका दिया बेलर जो दे रहा है, मैं बेलर, मैं दे रही हूँ सामान, वो बेली वो सामान ले रहा है. মানে মার্কেটিং ইউনিটের ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট এরকম ব্যাপার কি? नहीं, মার্কেটিং ম্যানুফ্যাকচারিং না, একটা কোম্পানি হয় যেমন সে শুধু ম্যানুফ্যাকচারিং করে, আর একটা কোম্পানি আছে সে শুধু মার্কেটিং করছে. তো মার্কেটিং ইউনিট দিচ্ছে, সে তার নামে प्रोडक्ट. अब डिपेंड कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो मार्केटिंग यूनिट को सामान जो है वो ओनरशिप ट्रांसफर कर ले रहा है. एक होता है कि भाई मैं आपके बिहाफ में काम करूँगा, मैं तुम्हारे बिहाफ में अगर काम करूँ, दैट मीन्स आई एम नॉट टेकिंग द ओनरशिप ऑफ दैट गुड. मेरे पास तुमने भेजा है, मैंने अपने वेयर हाउस में रखा और मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ, राइट. जो सेल नहीं होगा वो तुमको रिटर्न दूंगा. देन इन दैट केस इट कैन बी अ बेलर और बेली रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे मेरे नाम पे कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा ओनरशिप, ठीक है, मैं सिर्फ पोजेस कर रहा हूँ. बट अगर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगा कि भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है सामान खरीद लिया, तब उस टाइम बेलर बेली का रिलेशन नहीं होगा, ठीक है. बट नाम अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा, मैंने तुम्हारे लिए कहा, इट्स जस्ट लाइक अ मीडिएटर एजेंट रिलेशन बोल सकते हो तुम. फ्रेंचाइजी जो होता है नहीं, फ्रेंचाइजी में तो तुम कोई सामान यूज करने नहीं देते.
यूज मतलब मान लीजिए कि अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो वो जो डीलर पॉइंट जो बेचता है तो वो भी तो बिलिंग का काम कर रहा है। अगर कंपनी तो दे रहा है उसको সেটা वही तो बेच रहा है। अब उसका तो कंपनी का तो नाम तो ओनरशिप तो नहीं चेंज हुआ। हाँ ये तो हो सकता है, इस टाइप में हो सकता है और कुछ मतलब जैसा लाइक एशियन पेंट्स बर्जर जो भी उन लोग सब नॉर्मली बेलर और बेली का रिलेशन कहाँ आता है देखो, बेलर और बेली का रिलेशन मैक्सिमम आता है तुम्हारा लीज होल्ड प्रॉपर्टीज में, लीज वगैरह में। लीज लीज एंड लीज होल्ड कौन कौन प्रॉपर्टी जो लीज रहता है एनीथिंग, बहुत सारी चीजें लीज में रहती है। लैंड भी हो सकता है, जमीन, बिल्डिंग्स हो सकते हैं लीज पे, कोई दुकान हो सकती है, या कुछ सामान लीज पे दे सकता है, मशीनरी दे सकता है लीज पर। तो लीज में जो होता है ज्यादातर उसमें बेली बेलर बेली का रिलेशन होता है, या कोई सामान भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है शिवा हायर्स स्वडिश माजदा बस ऑफ श्रीनिवास। शिवा एक आदमी का नाम है जिसने एक बस हायर किया ऑफ श्रीनिवास। शिवा एक आदमी है, श्रीनिवास एक आदमी है। श्रीनिवास इज द बेलर क्योंकि उसका बस है, और शिवा इज द बेली जिसने उसका बस लिया। द बस डोर्स आर लूजली फिक्स्ड विद शिवा हाइड्स फ्रॉम श्रीनिवास। बस का जो दरवाजा है वो मैंने बहुत लूजली फिक्स था, ठीक है। विद शिवा हाइड्स फ्रॉम श्रीनिवास। श्रीनिवास इज इंजर्ड owing to non-disclosure. Shiva is held responsible for the injury caused to Srinivas. शिवा हायर्ड स्वराज मर्सिडीज बस ऑफ श्रीनिवास। यहाँ पे एक ये लाइन में थोड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ बोल रहा है शिवा हायर्ड स्वराज माजदा बस ऑफ श्रीनिवास। इसका मतलब है शिवा ने हायर किया स्वाजदा बस ऑफ श्रीनिवास, श्रीनिवास का बस हायर किया मैंने, ठीक है। द बस डोर्स आर लूजली फिक्स्ड विद शिवा हाइट फ्रॉम श्रीनिवास। एक्चुअली ये श्रीनिवास होना चाहिए था क्योंकि बस तो श्रीनिवास का है। श्रीनिवास ही शिवा को, यहाँ पे मेन जो है चीज बता दे रही हूँ इसका जो है। सपोज ए एक आदमी है, मिस्टर ए मिस्टर बी। ए ने मिस्टर बी का सामान हायर किया, एक तो बस हायर किया। अब वो बस का जो दरवाजा था दरवाजा ठीक से लगा हुआ नहीं था, इसके कारण जिसने हायर किया उसको नुकसान पहुंचा। owing to non disclosure Mr. A is held responsible for the injury caused to Srinivas। मतलब अब जिस पार्टी को, बेली को अगर कोई नुकसान होता है, बेली को अगर नुकसान हो रहा है बिकॉज बेलर ने उसको मटेरियल फैक्ट नहीं बताया, देन इन दैट केस बेलर इज रिस्पॉन्सिबल। मैं अपना सामान तुमको दे रही हूँ विदाउट डिस्क्लोजिंग द मटेरियल फैक्ट कि इसमें प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बी হচ্ছে রেসপন্সিবল। जो बेलर है ही इज रिस्पॉन्सिबल। It is the duty of the baler to reimburse the necessary expenditure incurred by the bailee for the work done on the bail goods in terms of contract of bailment। तुम्हारे सामान को ठीक ठाक रिपेयरिंग मेंटेनेंस में करवा रही हूँ, उसके लिए तुम मुझे पेमेंट दोगे। This duty arises only when no remuneration is paid by the baler for the services rendered by bail। ये तभी होगा जब जो मैंने बेलर जो है, बेलर कोई बेली को कोई रेम्यूनरेशन नहीं दे रहा है, कोई रेम्यूनरेशन नहीं दे रहा है तो सर्विसेज चार्ज तो देना पड़ेगा ना। मैं आपका सामान ठीक करा दे रही हूँ तो तुम तो दोगे ना मुझे सर्विस चार्ज। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, गायत्री डिलीवर्स रॉ गोल्ड टू रितिका फॉर मेकिंग अ नेकलेस। যার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে সার্ভিস চার্জ দেওয়া হবে মানে मेरा सामान तुम यूज कर रहे हो, तुम मुझे भाड़ा देगा, ভাড়া দিচ্ছে भाड़ा देगा। लेकिन अगर मेरा सामान कुछ खराब हो गया, जैसे बाड़ी वाला का घर का मैं भाड़ा दूंगी, लेकिन बाड़ी वाला का घर में अगर कहीं टूटा फूटा कुछ होगा, वो रिपेयरिंग तो मैं नहीं कराऊंगी, वो तो बाड़ी वाला कराएगा। और अगर बाड़ी वाला मतलब वो बोलता है कि तुम करा दो, मैं अगर करवा देती हूँ तो भी तो बाड़ी वाला उससे रिम्बर्स करेगा ना हमको, হ্যাঁ মানে মেন যে আমরা করতে পারবি करेगा। तो वैसे ही तो बेलर का सामान है, बेलर का सामान कुछ टूट फूट गया, उसको ठीक करा दे रहा है, बेली उसको ठीक करा दे रहा है, तो बेलर उसको पेमेंट करेगा। तो वही चीज यहाँ पे देखो, ये एक एग्जांपल देखो। जब भी लॉ में कुछ केसेस मैं बोलूंगी ना, तो मैं दिखा रही, कॉपी दो, केस तो आएगा ही, दुनिया का केस आएगा। तो एक रिलेशनशिप चार्ट टाइप का प्रिपेयर कर लेना पहले, तो इजी होगा समझ में। जैसे यहाँ क्या बता रहा है, गायत्री डिलीवर्स रॉ गोल्ड टू रितिका फॉर मेकिंग अ नेकलेस। तो ये गायत्री रितिका को रॉ गोल्ड दिया फॉर प्रिपेयरिंग नेकलेस, ठीक है। फॉर प्रिपेयरिंग फॉर मेकिंग अ नेकलेस। It is done accordingly. Ritika got a special lien on such jewelry
till she receives her service amount from Gayatri. अब रितिका जो है she has special lien on the gold. लियन मतलब उसके पास ये पोजेस करके रख सकती है till गायत्री गिव्स द पेमेंट. गायत्री ने रॉ सोना दिया कि तुम मेरे लिए एक नेकलेस बना दो, तो ये तो सोना को अपने पास रख सकती है जब तक वो उसका पेमेंट नहीं करेगा. तुम सर्विस चार्ज नहीं देगा तो मैं ऐसे ही बना के तो नहीं दूंगी ना. तो वही चीज है कि वो रितिका को एक लेन है ऑन द गोल्ड. लेन मतलब मैं अपने पास पोजेस करने का राइट है. नाउ उसके बाद हाँ दूसरा एक है श्रीकार्थी गिव्स गोल्ड बिस्किट टू रितिका फॉर मेकिंग अ ब्रेसलेट. अब एक और आदमी श्रीकार्थी, उसने रितिका को गोल्ड बिस्किट दिया फॉर मेकिंग ब्रेसलेट. ठीक है. इट इज अग्रीड दैट 1 month क्रेडिट विल बी गिवन फॉर पेमेंट. क्या टर्म्स है? 1 month क्रेडिट. समझ में? द ऑर्नामेंट मेड रितिका नीड्स टू डिलीवर द ऑर्नामेंट ऑन कंप्लीशन एंड वेट फॉर अ मंथ टू रिसीव द पेमेंट. ऑर्नामेंट बन गया. यहाँ पे ऑलरेडी क्रेडिट दिया ही हुआ था कि 1 month क्रेडिट इसको देना पड़ेगा फॉर पेमेंट. सो रितिका ने सामान बनाया, उसको डिलीवर करना पड़ेगा. शी हैज टू मेक द डिलीवरी एंड शी हैज टू वेट फॉर 1 month. क्लियर है? पहले का टर्म में क्या है? रितिका कैन ये जो है शी इज हैविंग अ लियन ऑन द गोल्ड बिकॉज कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था नहीं, कोई बात उसका था नहीं. वो तो उसका सामान बना, अब वो पेमेंट करेगा तब वो सामान देगी. पहला केस में क्या था? शी हैज लियन ऑन द गोल्ड बिकॉज देयर वाज नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग द सर्विस पेमेंट, सर्विस चार्ज पेमेंट. पर सेकंड केस में देखो रितिका हैज टू वेट फॉर 1 month बिकॉज इसके संग कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो 1 month का क्रेडिट देगा, 1 महीना बाद पेमेंट करेगा. समझ आया? It is the duty of the bailor to reimburse the loss if any incurred by the bailee on the goods bailed to him gratuitously if delivery is compelled prior to the predetermined period of purpose. Gratuitous bailments get automatically terminated either on the death of the bailee or the bailor. यहाँ पे क्या बता रहा है? बेलर को अगर बेली को कोई लॉस होता है तुम्हारा सामान यूज करने में या तुम्हारे सामान को ठीक ठाक करने में, नहीं थे इस टाइम में बेलर तुमको एक पेमेंट करेगा. ठीक है. इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू reimburse any loss or damage that may occur to bailey when the bailor fails to take the bailed goods within the specified period or fails to honor the bailment or giving direction respecting the contract of the bailment. देखो यहाँ पर ये भी तो एक तो बेली है, रितिका भी तो एक तो बेली है. वो तुम्हारा सामान अपने पास रख रही है, तुम्हारा सोना अपने पास रख रही है, बट वो सोना का ओनरशिप इसका नहीं है. शी हैज टू रिटर्न इट टू यू. अगर इस बीच में रितिका को सामान में कुछ नुकसान पहुंचा रही है या मैंने यही सामान में अब ये डिलीवरी लेने में लेट कर रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, 1 महीने का क्रेडिट दिया हुआ है, ये सामान ही नहीं उठा रहा है, पेमेंट ही नहीं कर रहा है, तो रितिका को तो नुकसान होगा ना. तो इन दैट केस वो बेलर को देना पड़ेगा. जो बेलर कौन है? एस. आर क्या है? बेली. और मान लीजिए उसने दिया एस दिया बी को या आर को रितिका को दिया, सामान कुछ प्रॉब्लम हुआ तो किसका मतलब एस ने जो सामान दिया गोल्ड बनाने दिया, आर ने उसमें कुछ प्रॉब्लम किया, देन दैट्स आर इज लायबल. आर लायबल होगा, जिसके द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा वही लायबल होगा ना. ये तो हमेशा के लिए. ड्यूटीज और लायबिलिटीज ऑफ बेली और राइट्स ऑफ बेलर, ये इतना मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं मतलब एग्जाम में जो आएगा उसके हिसाब से पढ़ा रही हूँ. कार्तिकेय बेल्स अ टन ऑफ सनफ्लावर ऑयल टू ऋतिक. ऋतिक विदाउट कार्तिकेय's consent combines the oil with refined oil. Sunflower oil is costlier than refined oil in this situation. यहाँ पे देखो, in case the bailey mixes the bailed goods with his other goods and unable to separate them at the time of delivery, then he is liable for the loss caused to such goods to the bailor. देखो पक्का मुँह इसका. मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, 2 आदमी हैं. ठीक है. क्या कहता है? कार्तिकेय बेल्स अ टन ऑफ सनफ्लावर ऑयल टू ऋतिक. मतलब मिस्टर ए ने सनफ्लावर ऑयल मिस्टर बी को रखने के लिए दिया, बेल्स किया, आपको हम भेजें. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को
a ton मतलब 1 ton of sunflower oil was sent to Mr. B. Mr. B पकामो मारा है, वो without A's consent. B A का without consent he mixed sunflower oil with normal जो refined oil होता है उसके साथ मिक्स कर दिया, मिक्स हो गया. अब ये क्या अलग हो सकता है? दोनों तेल अलग नहीं हो सकता. Now we all know sunflower oil is costlier than the refined oil. In this case, what can happen? Ritik is bound to deliver the baled oil to Kartikeya. देखो फर्स्ट केस में जो मिस्टर बी है इज बाउंड टू डिलीवर सनफ्लावर ऑयल टू मिस्टर ए, ही इज बाउंड टू बियर द एक्सपेंडिचर एनकर्ड फॉर सच डिलीवरी, और वो जितना डिलीवरी में खर्चा आएगा वो भी उसको देना पड़ेगा. अब वो देगा कैसे? तेल तो मिक्स हो गया, दैट मीन्स पेनल्टी, फाइन देना पड़ेगा, या अलग से तुम तेल निकाल के दो, अलग सा तेल तुमको डिलीवर करना पड़ेगा. In case the bailee mixes the bale goods with his other goods and is able to separate them for delivery, then he is liable to bear expenses or cost, if any, incurred for such separation. अब यहाँ पे क्या है, ये तेल की बात थी तो तेल कैन नॉट बी मिक्सड अप, वो मतलब तेल कैन नॉट बी सेपरेटेड, ऑयल कैन नॉट बी सेपरेटेड. सो इन दैट केस उसको ऑयल डिलीवर करना ही है और अलग से देना ही है उसको, ठीक है. बट यहाँ पर क्या है, सपोज आदित्य बेस 300 बेस ऑफ वुल मार्क विद अ डिस्टिंक्ट मार्क टू रामा. मिस्टर ए ने बी को कुछ वुल भेजा, ऊन, ऊन होता है ना, स्वेटर किसका बनता है, उसमें अलग से एक आइडेंटिटी, सपोज ये मार्क है, उसमें एक फूल बना हुआ है, ये मार्क किया हुआ. रामा विदाउट आदित्य कंसेंट मिक्सेस द सेम विद अदर बेल्स ऑफ वुल पोसेसिंग अ डिफरेंट मार्क. अब उसने क्या किया, उसका भी कुछ वुल था, उसमें ऐसे ऐसे गोल गोल मार्क था, अब ये दोनों कंबाइन कर दिया, इसमें ये मार्क और ये मार्क अब दोनों कंबाइन हो गया. अल्टीमेटली ही हैज नॉट टेकन द कंसेंट ऑफ मिस्टर बी बट ही मिक्सेस ऑल द वुल. देन इन दिस सिचुएशन Rama is responsible for delivery of Aditya wools to him. Mr. B is responsible for returning Mr. A's good. Rama is held responsible for any expenditure incurred by him in the course of separation for any damage occurred to the baled wool. मतलब Mr. B is required to pay all the expenses. इसको अलग करने में तो खर्चा लगेगा ना, तुमने अलग अलग पकामो मारा है तो अलग अलग करो, अब इसका खर्चा कौन बियर करेगा? मिस्टर बी. सिंपल सा बात है, एक कॉन्सेप्ट समझ के रखो, जिसकी गलती रहेगी ही हैज टू बियर द एक्सपेंडिचर, ठीक है. थर्ड पर्सन्स राइट्स इन बेलमेंट. When a dispute arises by a third party in respect of title of goods bailed by bailer, then the third party can knock the doors of the court too. Restrain the bailee from delivery of bailed goods to bailer and decide the title of the bailed goods. यहाँ पे क्या है, कोई थर्ड पार्टी, कभी कोई डिस्प्यूट हो सकता है बेलर और बेली का, उसमें एक थर्ड पार्टी आके ना गुजारा, थर्ड पार्टी कोर्ट में जा सकता है, ठीक है. रेस्ट्रेन द बेली फ्रॉम डिलीवरी ऑफ बेल गुड्स टू बेली, रोक सकता है. हाँ एजेंसी हो सकता है, फ्रेंचाइजी होता है वो. डिसाइड द टाइटल ऑफ द बेल गुड्स, ही विल डिसाइड. राइट ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स, देखो दिस इज इम्पोर्टेंट. द फाइंडर ऑफ गुड्स कैन नॉट sue for compensation from the owner for the trouble and expenditure incurred in protecting the goods and finding the owner. किसी को ये सामान मिल गया, तुम्हारा कोई सामान बेलर और बेली के बीच में ऐसे खो गया और किसी एक को मिल गया, so he is the finder of the good. Now finder of the good cannot claim for compensation. ओनर को मैं नहीं बोल सकती कि भाई तुमको खोजने में मुझे इतना खर्चा लगा है तो तुम मुझे इसका एक राइट दो, ऐसा नहीं है. बट कैन रिटेन द गुड टिल द ओनर पेज हिम सच कंपनसेशन. बट मैं उसको अपने पास रख सकती हूँ, अगर तुम कंपनसेशन नहीं दोगे तो मैं सामान अपने पास रखूंगी, क्योंकि मैं फाइंडर हूँ, मुझे सामान मिला है. Yes. The finder of the goods can sue for compensation where the owner declares the same for the return of such goods. Here also he can retain the same till he receives the compensation. The finder to goods can sell such goods when the subject matter of such goods is bound to lose or unable to find the owner even searched with reasonable diligence, or the owner fails to pay the lawful charges incurred by him even on demand. The circumstances under which the finder is free to sell the goods or the goods tend to lose greater parts of its value or the lawful charges amount to 2/3 value of the goods. इतना ये सब नहीं पढ़ना है. जनरल लियन ऑन बेल गुड्स. जनरल लियन मतलब एक तो मेरा एक पोजेशन राइट,
General lien is the other side of the particular lien. Bankers, factor, board fingers, attorneys of a high court and policy brokers are qualified for retention of bail goods. Bail goods as a security for a general balance of account. This can be done unless contract to the contrary is made. Except those qualified above, for all others an express contract must be available for retention of bail goods. बेल गुड्स को अपने पास रिटेन करने के लिए एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. तुमने मुझे अपना सामान मुझे दिया है यूज करना, मैं उसको अपने पास रिटेन कर सकता हूँ, इसका एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. बट जनरल लियन कब होता है? सपोज अब मैंने तुमको बुक्स दी है, अपने कुछ पढ़ने के लिए दिया है एंड मैं तुमसे उधार भी दी हूँ, तो अब तुम मेरा बुक्स अपने पास रख सकते हो अगर मैं उधार नहीं पेमेंट करूँ. ठीक है, दैट इज जनरल लियन. Suit against wrongdoer. When a third person wrongfully deprives the bailee for using the bail goods or does any injury to them, then the bailee got all the options that are available to the bailer for filing a suit against him and to claim compensation for such injury or deprivation. इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ खास है नहीं. Now, contract of pledge. The delivery of goods to a person as a security for repayment of a debt or for a performance of an act. Delivery of goods to a person for security for repayment of a debt. जैसे हम लोग होम लोन लेते हैं, तो लोन लिए हैं तो उसकी जगह पर हमारा जो पेपर्स है दैट इज बीइंग केप्ट देयर फॉर रीपेमेंट ऑफ अ डेट. बैंक वालों ने क्यों लेकर रखा पेपर हमारा? कि बस सिक्योरिटी कि भाई मैं डेट पे पेमेंट करूंगा. और परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट. The delivery is for temporary possession of goods until the purpose gets fulfilled. The ownership in goods is not transferred. Ownership क्या transfer होगा? नहीं हो रहा. These are typically used in securing loans, pawning property for each for cash and as a guarantee for accomplishment of assigned work. आजकल कंसल्टेंट लोग भी ऐसा करते हैं कि आपको नौकरी देते हैं और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं. तो वो तो एक्चुअली गलत है. तो दिस ऑल्सो सॉर्ट ऑफ प्लेजिंग कि भाई आप 6 महीना वो नौकरी करो, इसीलिए आपके लिए वो आपके वो डॉक्यूमेंट्स हम रखते हैं. तो ये ये लीगल मेरे को आईसीसी में ऑफर दिया लीगली है. नहीं, रिपोर्ट से निकाला. कुछ सब करने का बहुत कुछ है. Here the person who delivered the goods is called the pledger or pawner. The person who received the delivery is called pledgee. The goods delivered are called pledged goods. The contract between the pawner and the pawnee is called contract of pledge. अब bailment और pledge में क्या difference? देखो, सेक्शन याद रखने का कोई जरूरत नहीं. Nature, bailment is the act of transferring goods for a definite purpose without transferring the ownership. Here the purpose is either crafting the goods or for transportation. बेलमेंट नॉर्मली जैसे रेलवे में गुड्स वगैरह ट्रांसफर्ड होता है, ये सब चीज़. प्लेज, इट इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग गुड्स टू क्रिएट अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप. It is termed as a contract of bailment. It is termed as a contract of pledge. Bailer, person who delivers the good. Bailee, person who takes the temporary possession. Pawner, person who delivers the good. Pawnee, person who takes the temporary possession. Goods delivered are bail goods. Goods delivered are pledged goods. Conclusion of the contract. Contract concludes when bailee accomplishes the assigned purpose and delivers the bail goods to the bailer. Contract concludes when pawner repays the debt or performs the promises made and pawnee handovers the pledged goods to the pawnee. Bailer can use the bail goods if the terms of contract provides to. Pawnee is not allowed to use the pledged goods. मतलब मेरा जो प्रॉपर्टी का पेपर्स बैंक के पास है, बैंक कैन नॉट यूज दैट. मेरा फ्लैट मैं ही यूज करूँगा. बेलमेंट इज अ जेनस, प्लेज इज अ स्पीसी. इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट. ये देखो बेलमेंट और प्लेज का डिफरेंस है. Raj went to a 5-star hotel for the purpose of having dinner. When he entered the room, the waiter took his coat and placed it on a hook behind it. Keeping and protecting the coat till he finishes the dinner is bailment. मतलब कीपिंग एंड प्रोटेक्टिंग द कोट. मैं तुम्हारा सामान अपने पास संभाल के रख रहा हूँ. टिल ही फिनिशेस द डिनर इज बेलमेंट.
Pledge. Raja went to a bank and delivered gold jewelry for a loan. The bank gave the loan, pledging the jewelry with it. Lending loan on pledging the jewelry. Handing over the jewelry on repayment of loan amount to pledge. Pledge is basically a security sort of thing. Pledge में क्या हो रहा है, हम तुम्हारा कोई सामान अपने पास सिक्योरिटी के रूप में रख रहे हैं, सो दैट मैंने जो तुमको दिया है पैसे वगैरह तुम उसका पेमेंट टाइम पर करो. और बेलमेंट में क्या होता है, बेलमेंट में मैं तुम्हारा सामान को अपने पास रख रहा हूँ टिल फॉर सम एक्शन, मे बी ये रेलवे वगैरह में जाता है ना, गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है इधर उधर, तो वो उस टाइम वो बेली का काम करता है, मेरा सामान को वो संभाल के इधर से उधर पहुंचा रहा है, वेयर हाउस में रखवाते हैं हम आलू वगैरह, तो ये सब बेलर का काम है. आज यहाँ तक रहने दो.